Namaste, Jai Hind. Welcome to NCR Insights, the premier platform for intellectual discourse. As we present episode 6 of Real to Reality podcast series, I'm your host, Lakshika. Today we explore the dynamic interplay between theoretical frameworks and practical applications. Joining me is Dr. Apurva Joshi, who is esteemed head of the Department of Masters of Computer Applications at NCR-based NIET College. A distinguished PhD in computer science, Dr. Joshi brings invaluable expertise in cutting-edge advancements in computer software and applications. As we navigate the academia-industry continuum, we'll examine the challenges and opportunities inherent in translating research into tangible impacts. This episode will delve into the interplay of the IT industry, innovation, and high performance work culture, exploring the collaboration to drive groundbreaking innovations. Please join me in welcoming Dr. Apurva Joshi as we embark on an insightful journey through her illustrious career. From her engineering inspiration to her current role as a pioneering leader in computer science research and education. Welcome, Dr. Apurva Joshi. Thank you so much, Lakshika. So let's start with our questionnaire. Okay. Dr. Joshi, can you share with us your journey into the field of computer application and what inspired you to pursue this profession? So my computer application journey is started from BCA course, which I have completed from MCA University Bhopal. Then after I have completed my MCA from RGPV University, and then I am joining the college, Career College Bhopal, and I am completed my PhD in 2021. And after that, when we talk about why I pursue this profession, so firstly, this profession is basically not only a profession, it is a serving profession. सो फ्रॉम द चाइल्डहुड जो था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने डिसीजंस लिए थे लाइफ में. और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन था, जब मैं इसके अंदर एंटर हुई तो एक वो जो स्पार्क होता है ना कि डीप डाउन जाना है, उसी के साथ साथ मैं अपना पीएचडी करती रही, क्योंकि टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप सर्व भी करते हो बच्चे को, साथ साथ आप अपने रिसर्च को भी कंटिन्यू कर सकते हो. तो ये एक इनर जील थी जिसके के कारण मैंने इसको आगे एज अ प्रोफेशन लिया. How did your educational background shape your interest in computer application and what motivated you to pursue a PhD in this field? When we talk about the research work, एक्चुअली रिसर्च वर्क में क्या है, हम जब मैंने बीसीए स्टार्ट करा था कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे माइंड में आई थी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन. जब मैं एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा इनर कोर में गई, मतलब जब मैंने अपना एमसीए कंप्लीट करा बीसीए के बाद, तो एक प्रॉब्लम मेरे सामने आई थी, दैट इज़ कॉल्ड कि जो अपना हेल्थ केयर सेक्टर होता है, इसमें जो प्राइवेसी होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है कि वो थोड़ी सी एक मेजर इशू होता है कंसर्न का, और वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन मीन्स एक प्रॉपर एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. और वो जो एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को लेकर के मैं आगे गई और मैंने अपनी रिसर्च को उसके अंदर कंप्लीट करा. तो वो एक इनर फायर होता है कि जब आप रिसर्च को स्टार्ट करते हो तो उस फायर के मोड के अंदर वो रिसर्च आपका बहुत इजीली कंप्लीटेड हो जाता है, बट वो फायर होना चाहिए. आपने पीसीए ही क्यों चूज किया जब आप बीटेक या फिर कोई और फील्ड भी चूज कर सकते थे? जब हम 12th पास आउट करते हैं तो वो जो एक टाइम होता है अपना सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, तो हमारा माइंडसेट कैसा होता है कि हम जो करंट फील्ड होती है जिसमें हमको लगता है कि यार इस फील्ड के अंदर अभी बहुत वर्कआउट है या इसमें और ज़्यादा काम आगे हो सकता है और ये अपने आप में एक बहुत ग्रोइंग फील्ड रहेगी, तो उसको देखते हुए मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुई और मैंने डिसाइड करा कि यदि मुझे कोई फील्ड लेनी है तो मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ ही जाऊंगी. और सो दैट उसके अंदर मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन को चूज करा और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीसीए से किया. What challenges did you face in a student journey? इन स्टूडेंट जर्नी जो मेजर कंसर्न मैंने फेस किया था जब मैं अपना एमसीए कर रही थी,
ड्यूरिंग द एमसीए मुझे ये समझ में आया कि जो हमारा करिकुलम है, मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, नॉर्मली कोई भी आप यूनिवर्सिटी को लोगे, उनका सिलेबस उतना अप टू द मार्क नहीं होता है, अप टू द डेट नहीं होता है ना। तो और जब आप पास आउट होकर के बाहर जाते हो, है ना, तब तक जो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये डेली चेंज हो रहा है ना। आज की डेट में हम एक मोबाइल को परचेस करते हैं, 4 दिन बाद उसके अंदर कुछ नए फीचर्स के साथ मॉडल नया आ जाता है। तो ये अपने आप में एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। तो जब मैं अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड में थी, जब मैं अपना एमसीए कर रही थी, तो मैंने इस चीज़ को फेस किया कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा मीनवाइल हमारा करिकुलम है और जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हैं, जो मेरा सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग था, जो मैंने अपने एज ए स्टूडेंट मैंने फेस किया था। एंड नाउ दैट यू आर डिपार्टमेंट हेड, अब आप क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? एज अ डिपार्टमेंट हेड यदि मैं बात करूँ तो चैलेंजेस इतने नहीं हैं। जो चैलेंजेस हैं वो हमारे अलग बच्चों के लिए आते हैं, जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं कि स्टूडेंट्स को अप टू द डेट रखना, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा मेजर इशू है, जो मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए बहुत टिपिकल है, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है, ये बहुत ग्रेजुअली चेंज होने वाली ब्रांच है। तो ये प्रॉब्लम तो आती है, बट नो डाउट एज प्रेजेंटली आई एम इन ऑटोनोमस कॉलेज, एनआईटी कॉलेज जो है ऑटोनोमस है, तो हमारे पास ये राइट है कि हम अपने करिकुलम को इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी हमारे टाइम में, हम उस प्रॉब्लम को हमारे बच्चों को फेस करने के लिए नहीं रखते हैं। How do you think the curriculum for computer application courses can be improved for better prepare students for the industry? नो डाउट यदि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो जो हमारा करिकुलम है, जो हमारे बच्चे का सिलेबस है स्टूडेंट्स का, उसको अप टू डेट हमको करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन, हमारा जो बच्चा होता है वो एमसीए स्टूडेंट, बेसिकली 3rd सेमेस्टर इन 4th सेमेस्टर दे गॉट प्लेस्ड फ्रॉम द कॉलेज, है ना, वो उनका कैंपस हो जाता है। वो बच्चे से हमको फीडबैक मिलता है कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में राइट नाउ चल क्या रहा है, उन फीडबैक्स को हम लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे पास हमारा इंडस्ट्री बोर्ड होता है डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें हम अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से जुड़े होते हैं, जो हमें टाइम टू टाइम ये गाइड करते हैं कि अभी प्रेजेंट में इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, ताकि उस डिमांड को यदि हमने अपने करिकुलम के अंदर फुलफिल कर दिया, तो हमारे बच्चे को वो गैप की प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी और उसके लिए नंबर ऑफ जॉब्स भी मार्केट में ज़्यादा होंगे। What advice would you like to give students who are struggling to keep up with the rapidly evolving field of computer applications? जो बच्चे स्ट्रगल फेस करते हैं, वो स्ट्रगल फेस सिर्फ इसलिए करते हैं कि कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में सिर्फ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि बाकी भी जा रहे हैं, है ना। ये बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि मेरा दोस्त उसमें जा रहा है, मेरी फ्रेंड उसके अंदर जा रही है, तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। दूसरी बात, एक हमारी जो सोसाइटी है उसका एक प्रेशर होता है ना। बच्चा यदि कॉमर्स में जाना चाहता है, वो मैनेजमेंट में जाना चाहता है, फाइनेंस एरिया में जाना चाहता है, पर उसको लगता है यार सब तो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रेशर है कि उसको इंजीनियर बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, और वो क्या करता है, कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन की फील्ड में आ जाता है। पर जब वो यहाँ पर आता है तो वो उतना उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट एरिया उसके अंदर उतना नहीं होता। और कोई भी फील्ड क्यों ना हो, वो आप कॉमर्स की फील्ड ले लो, आप मैनेजमेंट की फील्ड ले लो, या कंप्यूटर्स की फील्ड ले लो, यदि आपके अंदर वो इनर ज़ील नहीं है कि मुझे इस चीज़ को सीखना है, तो वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करते। तो मैं बच्चों को हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आपको लाइफ में वो करना चाहिए जो आपका मन हो। ऐसा एक दूसरे को देख करके कि मेरा फ्रेंड ले रहा है इसीलिए मैं उस फील्ड में जाऊँगा, ये कहीं ना कहीं आगे आपको क्या करेगा, रोक देगा। बीसीए का फ्यूचर आप क्या स्कोप है, क्या बच्चों को क्यों चूज करना चाहिए, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? व्हेन वी टॉक अबाउट बीसीए विच इज़ बेसिकली अ बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री का जो बच्चा है उसके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल टेस्टिंग जैसी फील्ड अवेलेबल हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा एनालिस्ट जैसी फील्ड्स हैं। तो जो कंपनीज हैं, इनको आप बीसीए के हो, आप बीटेक के हो, या आप पीजी कर चुके हो, आप एमसीए एमटेक के बच्चे हो, कंपनीज को ऐसे लोगों की आज जरूरत है जो कि स्किल्ड हो, जो एक्सपर्टीज रखते हो पर्टिकुलर फील्ड में। तो यदि हम बीसीए के बच्चों को सेम नॉलेज दे रहे हैं जो एक पीजी लेवल के बच्चे को होता है, तो नो डाउट वो बच्चे का उसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा।
मतलब आगे उसका जो फ्यूचर होगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो मैं बीसीए के बच्चों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि यदि आप अपनी फील्ड में हो तो आपको अप टू द डेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई भी फील्ड क्यों ना हो, यदि आपकी उस फील्ड के अंदर स्किल्ड हो, आपकी एक्सपर्टीज है, तो आपके पास जॉब की कमी नहीं है। इज देयर एनी रोड मैप जो कि एक स्टूडेंट फॉलो कर सकता है टू गेट गुड प्लेसमेंट? डेफिनेटली एक प्रॉपर रोड मैप बच्चे को उसके कैरियर की जर्नी में बहुत आगे ले जा सकता है। जैसे कि बच्चा यदि लैंग्वेजेस की बात करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज उसको सीखना है, उसको आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना, तो उसका माइंडसेट होना चाहिए कि सबसे पहले लैंग्वेज का बेसिक सीखे, फिर उसका एडवांस सीखे, है ना, और उस लैंग्वेज से जुड़े हुए कितने फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल है उनके बारे में जाने। तो यदि वो बेसिक से शुरू करके फिर धीरे धीरे एडवांस की ओर आता है तो वो ज़्यादा बेटर वे में उसको सीख सकता है। तो यदि बच्चा अपने रोड मैप के साथ चलता है, अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना, उसको टेस्टिंग के अंदर जाना है, तो वो स्टार्टिंग से उस पे वर्कआउट करे। तो एक प्रॉपर रोड मैप बच्चे को नो डाउट बहुत हेल्प करता है आगे जाने में। कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो एक स्टूडेंट यूज़ कर सकता है टू गेट अ गुड प्लेटफॉर्म, टू गेट गुड प्लेसमेंट, या फिर कुछ नई स्किल डेवलप करने के लिए अपने अंदर? यदि मैं बच्चों के प्लेटफॉर्म की बात करूं कि बच्चों को किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू भी है। बच्चे आज प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, उनको क्लास में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जब टीचर उनको पढ़ाता रहता है या उनको पढ़ाता है, वो उसको सुनता भी है एक तरीके से, पर वो जब घर जाता है वो स्टार्ट गूगल करना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो कंटेंट बच्चा वहां से निकाल रहा है वो कितना सही है, उसको अपलोड कौन कर रहा है सर्वर पे, उसको कौन चेक करेगा? क्योंकि बच्चे आज प्रेजेंट टाइम में बुक से बहुत दूर हो गए हैं, है ना। बुक जो होती है, बुक्स को बहुत चेकिंग होती है, उनके एडिटोरियल बोर्ड होते हैं, तो वो उसका जो कंटेंट होता है वो सही होता है। आपका जो टीचर है वो भी बहुत पढ़कर आया है, तो उसका भी अपना एक्सपीरियंस है, वो गलत और सही की डेफिनेशन को जानता है। बट जब बच्चा आजकल जो जो कह सकते हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, बच्चा लिखना पसंद नहीं करता, बच्चा घर जाके गूगल करना पसंद करेगा या वीडियोस देखना पसंद करता है, पर उसका जो कंटेंट है वो कितना सही है उसको कौन चेक करेगा? तो मैं बच्चों को हमेशा ही एडवाइस करती हूँ कि ट्रस्ट ऑन योर फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि वो जब कॉलेज के अंदर आते हैं तो उनकी सारी डिग्री चेक करी गई है, पर आपको इंटरनेट पे जो कंटेंट डाला गया है, किसने डाला है, उसको कौन चेक कर रहा है? तो मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो, उसके मीनवाइल बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा पढ़ता नहीं है। अब आप उस बच्चे के बारे में सोचो जिसने कभी बुक से पढ़ाई नहीं करी, वो इंटरनेट के यूट्यूब वगैरह देख रहा है और उसी से पढ़ाई कर रहा है। अचानक वो किसी कंपनी में जाता है, उसको एक नई टेक्नोलॉजी दी जाती है और उसके लिए उसको एक लैब मैनुअल दे दिया जाता है, पूरा मैनुअल उठाकर कि ये 200 पेज का मैनुअल है, ये आप पढ़िए और इस टेक्नोलॉजी के अंदर आप काम कर सकते हैं। वो बच्चा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने लाइफ में कभी पढ़ के कुछ नहीं सीखा। उसको आदत पड़ी हुई है कि वो स्पून फीडिंग कोई उसको कर देगा और उसके बाद वो उसको इनिशिएट करेगा। तो हम बच्चों को हमेशा ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि बेटा पढ़ने की आदत डालो, जो बुक्स जो होती हैं वो एज अ फ्रेंड उनको लेना शुरू करो, तो उनके लिए आगे कैरियर के लिए बहुत हेल्प होगी। एज अ पेरेंट आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि इस एज में आके स्टूडेंट्स काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं, तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम कि अपने आप को कैसे स्टेबल रखें इस एज में, अपने करियर पे कैसे फोकस्ड रहें? यहाँ मैं एक प्रॉब्लम बच्चों की बताना चाहूँगी। बच्चों के साथ प्रॉब्लम एक्चुअली क्या आती है, जब बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है। अब हमारे पास बेसिकली जैसे कि आई एम हेड ऑफ स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हमारे पास दो तरीके के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो यूजी कर रहे हैं हमारे साथ बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड के, और कुछ बच्चे आते हैं पीजी के। पर हम सब लोग, है ना, जब हम भी पढ़ते थे उसको भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगी। जो कॉलेज की लाइफ होती है ना, जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो पहले जो हम एंटर करते हैं तो हमको लगता है बस हमको कॉलेज से निकलना है और बहुत अच्छी जॉब लेनी है, मैं कॉलेज में जाऊँगा और खूब लग के पढ़ाई करूँगा। बट कहीं ना कहीं जब बच्चा कॉलेज में आता है तो उसने एक वो दुनिया भी देखी है जो उसको डिजिटली दिखाई गई है ना, उसने कुछ मूवीज वगैरह देख के रखी हुई हैं और वो उसका जो एक्ट होता है उस अब दोनों में फंस जाता है। उसको लगता है यार कॉलेज का टाइम है, मुझे कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट भी करना है, इसके बाद तो बस जॉब करनी है, पूरी लाइफ ही अलग हो जाएगी। तो वो एक तरफ से वो बच्चे के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एक तरफ इंजॉयमेंट भी बहुत करना चाहता है
और यही वो मेजर टाइम होता है जिसमें उसका कैरियर बनने वाला होता है। तो बच्चे के साथ ये हर्डल तो आते हैं, पर मैं बच्चों को हमेशा यही मैसेज देने की कोशिश करती हूँ कि एंजॉयमेंट ज़रूरी है। बिल्कुल ये नहीं है कि आप बिल्कुल एंजॉयमेंट छोड़ दो, पर पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये जो एक बैलेंस होता है ना बच्चों के लिए, ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा एकदम अपनी लाइफ को एकदम, जो कहते हैं ना कि बच्चा एकदम डिप्रेस्ड भी ना हो जाए कि दिन भर लगा हुआ है पढ़ाई कर रहा है। तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि हमेशा एक बैलेंस बना करके चलो, क्योंकि एंजॉय भी आपको करना है लाइफ को, और साथ ही साथ आपको अपना कैरियर भी इन्हीं 2 से 3 साल के अंदर बनाना है। इस एज में आके स्टूडेंट्स नेगेटिव एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स, ड्रिंकिंग या कोई लव डिस्ट्रैक्शन। तो उन सब के बारे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट को? बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि बच्चा अपने पेरेंट्स से उतना नहीं सीखता है ना, अपने टीचर से भी उतना नहीं सीखता। बच्चा हमेशा पीयर टू पीयर लर्निंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना। जब उसके साथ वाले लोग किसी एक्टिविटी को करते हैं और उनको लगता है यार ये लोग मुझसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो वो इस तरह की एक्टिविटी की तरफ चला जाता है। बट बच्चों को भी, और मैं इस समय थोड़ा सा पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि हमें बच्चों को बैलेंस करना लाइफ में सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के फ्रेंड बनना ज़रूरी है ना। पहले एक वो सिनेरियो था कि बस पेरेंट्स ने कुछ सुना वो बच्चे को डायरेक्ट स्लैप कर देते है ना। अब वो सिनेरियो नहीं है। अब प्रेजेंट टाइम में जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से उम्मीद करता है कि यार वो मेरी बात सुने। टीचर से भी उसकी यही होप रहती है कि वो मेरी प्रॉब्लम को सुने। पर टीचर्स के साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनके पास मतलब जो क्लास के अंदर बच्चे होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, वो हर एक बच्चे को उतना अटेंशन नहीं दे सकते। बट नो डाउट यहाँ पेरेंट्स का, टीचर का, दोनों का ही रोल है, ताकि वो बच्चा किस बच्चों के साथ है, उसके फ्रेंड ग्रुप कैसे हैं, वो किस तरीके की एक्टिविटी में है, उसको थोड़ा सा वॉच या मॉनिटर करें। क्योंकि ये टाइम बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल होता है और यहाँ वो नहीं समझ पाता कि सही या गलत क्या है। उसको ये लगता है कि जिसमें मज़ा आ रहा है, जिसमें मैं इंजॉयमेंट कर रहा हूँ, वही ज़्यादा सही है। तो उसको वहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? ओके, वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को, मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस तो आई थिंक हर पर्सन को करना पड़ता है, वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, है ना। हम किसी भी फील्ड के अंदर देखेंगे तो वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही के अंदर वो बैलेंस करना ज़रूरी होता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे लेकर के जाएंगे और साथ साथ प्रोफेशन को कैसे लेके जाएंगे। और यदि आप थोड़ा सा बैलेंस करो तो ये ईजी भी है। एज ए टीचर आप कैसे कनेक्ट करती है अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उन्हें तो गार्जियन फील हो कि आप उनके गार्जियन भी हैं एंड उनके एक टीचर भी हैं? ये कनेक्शन बनाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हम दोनों तरीके के रोल प्ले करते हैं। हम बच्चों के साथ ज़्यादा लीनियंट भी नहीं हो पाते, पर बच्चों के साथ ज़्यादा हार्श होना भी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट भी रहे हैं तो हम उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको समझ सकते हैं। तो ये जो एक बैलेंस की बात होती है, हम कभी कभी बच्चों के साथ बहुत हार्श ट्रीट करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास बच्चे आते भी हैं तो हम उनकी बात को सुनते भी नहीं है, सीधे हम उनको डांटना शुरू कर देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अपोजिट, जब कोई बच्चा हमारे पास दूसरी बार आता है तो हमारा बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक मतलब ये बच्चों के अंदर ये होता है कि फैकल्टी ने उसको डांट दिया तो फैकल्टी को हमेशा याद रहेगा कि उसने बच्चे को डांटा, पर बच्चा उस चीज़ को याद रखता है। हम इस चीज़ को कभी याद नहीं रखते। मीन्स हमको वो बच्चे का फेस कभी याद नहीं रहता कि यार इस बच्चे को मैंने बुरा बोला था। हम उस बच्चे को, क्योंकि हम हमारी व्यू के अंदर आप देखोगे तो हम बच्चे को कभी बुरा नहीं बोल रहे होते हैं, हम हमेशा उस बच्चे के लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं। पर वो एक बच्चे का सिनेरियो रहता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको लगता है कि टीचर उसके लिए बहुत हार्श हो गया है और वो अच्छा नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। जब बच्चा दूसरी बार हमारे पास आता है तो हमारा बिहेवियर उसको चेंज मिलता है। तो ये बैलेंस हम बनाकर चलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लीनियंट भी नहीं हो सकते एज अ टीचर, है ना, और ज़्यादा हम हमेशा सॉफ्ट स्पोकन हो वो भी हमारी फील्ड के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो नो डाउट हम कुछ बैलेंस बना करके चलते हैं। What are some common misconceptions that parents may have about computer application education and how they can be addressed? मिसकंसेप्शन की यदि हम बात करें तो मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि बच्चे का यदि उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। यदि हम मिसकंसेप्शन देखें तो हमारे यहाँ मतलब एज अ पेरेंट्स की भी यही थिंकिंग होती है और बच्चे को भी ये लग रहा होता है कि उसने यदि कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन ले लिया, वो BCA कर रहा है, वो MCA कर रहा है, तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है
है ना, उसको बस लैंग्वेज सीखनी है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रेजेंट टाइम के अंदर पेरेंट्स को बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन एक अपने आप में वास्ट फील्ड है ना, और जो कि बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आज प्रेजेंट टाइम में एआई का बूम है ना। बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत है। अपार्ट फ्रॉम द कोडिंग वर्क, बच्चे के पास आरपीए है, बच्चा सेल्स फोर्स में जा सकता है, बच्चा डेटा एनालिस्ट जैसी ब्रांच को ले सकता है। डेटा साइंस भी प्रेजेंट टाइम के अंदर बूम पर है, एआई इस समय बहुत आगे है। तो बच्चों को थोड़ा सा, और पेरेंट्स को भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है ना। वो टेस्टिंग की फील्ड में भी जा सकता है, वो डेटा एनालिस्ट भी बन सकता है, वो डेटा साइंस के अंदर भी जा सकता है। तो ये नॉलेज बच्चों में और पेरेंट्स दोनों में होना चाहिए। एज यू सेड एआई बूम पे है अभी, तो आपको क्या लगता है, कैन एआई रिप्लेस स्टूडेंट या प्रोफेशनल इन प्रोफेशनल फील्ड्स? एआई की यदि हम बात करेंगे तो ये रिप्लेस, तो जहाँ तक है कुछ जो ब्रांचेस हैं वो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि हाँ ज़्यादा एआई आगे बढ़ता है तो कुछ जॉब्स जो होंगी वो हमारी कोलैप्स हो जाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि कुछ जॉब कोलैप्स होंगी तो कुछ न्यू जॉब्स हमारे सामने आएंगी। तो ये जो प्रेजेंट सिनारियो है इसके अंदर बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो वो वही प्रोफेशन सेम उसी स्ट्रक्चर के अंदर उसको आगे मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस चेंज हो रहा है। तो यदि हमारे अंदर चेंजिंग की कैपेसिटी है तो हम हर चीज़ को फेस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जॉब कोलैप्स होंगी तो कुछ इंक्रीज भी तो होंगे, कुछ नए वर्क्स हमारे सामने आएंगे। तो यदि बच्चे के अंदर लर्न करने की जो कह सकते हैं कि कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो वो लर्न कर जाएगा, वो नई जॉब के साथ खुद को इजीली हैंडल्स कर जाएगा। पर यदि वो खुद रेजिड है कि नहीं इसके आगे नहीं होगा, मुझे तो डेवलपमेंट में जाना है, मैं तो यही करूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे को अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा। ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि हमें ओपनली सोच के देखना पड़ेगा कि जो न्यू जॉब्स रोल हमारे सामने आएंगे उनको हम कैसे ग्रैस्प कर सकते हैं। एज यू आर अ फीमेल एंड आई एम अ फीमेल, हम ऑब्जर्व करते हैं टेक्निकल फील्ड में फीमेल्स इतनी आगे नहीं आ रही है। जो रेशियो है मेल टू फीमेल वो अभी भी इतनी इक्वालिटी, इतनी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलने के बाद भी काफ़ी कम है। तो आपको कोई रीज़न इसके पीछे दिखता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे हम इस रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं? एजुकेशन इज द पावर। जिन गर्ल्स चाइल्ड को मौका मिलता है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मतलब जो हायर एजुकेशन तक जा पा रही हैं, वो गर्ल्स नो डाउट कहीं भी पीछे नहीं है। हम आगे या पीछे वाली बात नहीं करते हैं, हम साथ चलने की बात करते हैं हमेशा। तो वो गर्ल्स कहीं ना कहीं भी पीछे नहीं है जिनको एजुकेशन का मौका मिल रहा है। तो ये बात एक जो आप कह रहे हो, नो डाउट ये एक रियलिटी है कि यदि हम एडमिशन के नंबर्स भी देखते हैं तो गर्ल्स का रेशो हर ब्रांच में आपको कम देखने को मिलता है। उसका जो एक रीज़न होता है वो यही होता है कि ज़्यादातर जो बच्चियां हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ, आज भी हमारा रेशियो यदि आप इंडिया का देखोगे तो बच्चियां हायर एजुकेशन के लेवल तक कम पहुंचती हैं। यदि उनको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करें, मतलब ऐसी कुछ पॉलिसीज लाएं या ऐसी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह आए जिसके के थ्रू बच्चियां आगे पढ़ सके, तो नो डाउट ये रेशो को इस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं और फिर बच्चियां किसी से कम नहीं है। नो डाउट गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल। How does NIT College support students in terms of internships, projects, and mentorship opportunities, and what role do these initiatives play in shaping their careers? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द NIT कॉलेज बच्चों को आगे बढ़ने के लिए डिफरेंट तरीके की इंटर्नशिप या वर्कशॉप स्टाइल टीचिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मीन्स हमारे यहाँ जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उनको हम वर्कशॉप मोड में चलाते हैं, लाइक कोडिंग वाले जो सब्जेक्ट होते हैं या ऐसे सब्जेक्ट जिसमें बच्चे को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है एंड स्टूडेंट नीड टू बी स्किल्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, उन चीज़ों को हम वर्कशॉप मोड में चलाते हैं जिससे कि बच्चे, और कभी कभी जो हमारी जो वर्कशॉप होती है कभी हमारी इन हाउस होती है, कभी हम कंपनी इंडस्ट्री लोगों को बुलाते हैं ताकि उस गैप को भी हम फिल आउट कर सकें।
अपार्ट फ्रॉम दिस हम बच्चे को अलग अलग इंटर्नशिप के ऑफर्स देते हैं जो कि हमारे प्लेसमेंट सेल से भी बच्चों को मिलते हैं, और इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इंटर्नशिप के बहुत सारे इनिशिएटिव बच्चों के लिए लेकर आती है। तो नो डाउट जो कॉलेज है वो बच्चों को इंटर्नशिप एज वेल एज जो वर्कशॉप मूड स्टाइल की टीचिंग है, इसके थ्रू हम बच्चों के इंडस्ट्री और जो एकेडमिक है उसके गैप को भरने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को आगे इंडस्ट्री में जाकर के कभी भी ये फील ना हो कि यार उसको नॉलेज थोड़ा सा कम है। Can you please elaborate workshop style mode जो आपने बोला? What exactly is that? वर्कशॉप मोड टीचिंग का जो एक मेजर कंसर्न है या जो उसका रीजंस हैं वो ये है कि हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को एक दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। अब वो 5 पढ़ने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो उसके दिमाग में वो 5 सब्जेक्ट चल रहे होते हैं। अब उसके अंदर से वो 1 या 2 को रिवाइज करता है, और उसके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं रिवीजन के अपार्ट रह जाते हैं, है ना। वो फिर अब जब वो कॉलेज आया नेक्स्ट डे फिर आगे का पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो जो बंडल बनता चला जाता है वो एक स्टैक बच्चे के पास होता है, क्योंकि वो अभी 5 सब्जेक्ट डेली पढ़ रहा है। जब हम वर्कशॉप की बात करते हैं तो हम बच्चे को पूरे दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस करने के लिए रखते हैं, ताकि उस बच्चे को माइंडसेट कहीं और ना जाए, वो दिन भर केवल उसी की प्रैक्टिस करे, और जब शाम को वो घर जाए तो घर जाके भी उसके पास करने के लिए वही होमवर्क हो जो कि उसने अपने कॉलेज के अंदर किया है। तो जब हम उसको 10 to 12 डेज के अंदर इस तरीके से किसी पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, तो ट्रेनिंग इज ऑलवेज बेटर देन अ क्लासरूम टीचिंग्स। तो ये जो हमारी वर्कशॉप मूड है ये कहीं ना कहीं हमको, ये जो वर्कशॉप मोड है कहीं ना कहीं हमको क्या करती है, बच्चे को एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ जेल होने में हेल्प करती है, जिससे नो डाउट बच्चे की जो रिजल्ट है, और इस बार जो हमने प्लेसमेंट भी बच्चों को देखा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और जो हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं उससे भी हमें समझ में आया कि ये जो वर्कशॉप स्टाइल टीचिंग होती है ये ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू हम एक दिन में बच्चे को 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ा दें। ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा स्ट्रेनियस नहीं हो जाता एक ही सब्जेक्ट, आप इतनी देर तक एक स्टूडेंट को पढ़ाएंगी तो फिर आउट ऑफ फोकस चला जाता है बच्चा। आजकल बच्चों का अटेंशन स्पैन बिल्कुल, यदि वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे हम वर्कशॉप बच्चे को करवाएंगे और ये कहेंगे कि बेटा तुमको 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो उसके लिए वाकई में एक हेक्टिक टास्क होगा। बट जब हम वर्कशॉप स्टाइल टीचिंग की बात करते हैं तो हम ऐसे सब्जेक्ट रखते हैं जो कि थ्योरी भी है, जिनमें प्रैक्टिकल भी है, जिनके अंदर किसी थर्ड प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करा गया है जिसमें बच्चा अपनी कोडिंग वगैरह कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा, दूसरी बात जो हम हमेशा बोलते हैं कि पीयर टू पीयर लर्निंग इस समय बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है एज कम्पेयर टू टीचर टू स्टूडेंट के। तो जब बच्चा वर्कशॉप में रहता है तो वो अपने छोटे छोटे डाउट मे बी हर टीचर से हर बच्चे को समझ में नहीं आता, तो वो अपने साथ वाले से, मतलब पीयर से भी वो क्या कर सकता है, सीख सकता है, क्योंकि उसको पूरे दिन वही चीज़ें आज करनी है। तो यदि वो थ्योरेटिकल है तो नो डाउट वो एक हेक्टिक बन सकता है, पर ये जब हम बात करते हैं वर्कशॉप की तो ये हमेशा कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके करते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, जिसमें थ्योरी पार्ट भी होता है, जिससे पीयर टू पीयर लर्निंग भी आ जाती है, और जो अदर प्लेटफॉर्म के साथ बच्चा अपनी कोडिंग करता है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। What are some of the key schemes or programs that NIET College offers to support students from underprivileged backgrounds or those who are from financial assistance? जब बच्चा कॉलेज में एक्चुअली में एडमिशन लेता है तो उसके पास एक फी वेवर वाला ऑप्शन भी आता है। तो हम बच्चों को, ऐसे भी स्टूडेंट हमारे साथ होते हैं जो फी वेवर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ए नंबर ऑफ पॉलिसीज और स्कॉलरशिप जो कि हमारे कॉलेज से भी कुछ इनिशिएटिव होती है और कुछ स्टेट लेवल गवर्नमेंट से भी होती हैं। जैसे कि यदि मैं एमसीए की बात करती हूँ तो एमसीए के अंदर जो स्कॉलरशिप जो 2 चलती है, एक तो बीआरसीसी का भी चलता है जो कि बिहार की गवर्नमेंट चलाती है, उससे भी बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है और वहाँ से भी हमारे पास बहुत बच्चा आता है बिहार की क्रेडिट स्कीम से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यूपी गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम चलती है, और हमारे यहाँ भी जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आता है उसको भी हम कुछ मनी के थ्रू मतलब फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप हर तरीके के बच्चों को लेते हैं। अब ये तो एक तरीका हो गया कि हम उसको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बच्चे को जो कि थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से आता है, उन बच्चों के लिए हम कम्युनिकेशन की स्पेशल ट्रेनिंग कर पाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले वर्कशॉप मोड स्टाइल की, वही ऐसे ही कुछ वर्कशॉप की तो नहीं कहेंगे, बट हाँ हम बच्चों के लिए कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करते हैं। हम बच्चों की जो इंग्लिश की ट्रेनिंग होती है वो करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यदि आप एमसीए का कभी करिकुलम चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा हमने उसके अंदर पर्सनली डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट डाल के रखा है।
क्योंकि जो बच्चा बाहर से आया हुआ है, जो थोड़े से रूरल बैकग्राउंड का, उसको उसकी भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अब हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की। बच्चे को किसी एक स्किल के अंदर नहीं, बच्चे को आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो, उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो, साथ में उसकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, हम उसकी हेल्प करते हैं। Finally, what message or advice would you like to share with our listeners, particularly parents who are considering enrolling their children in computer applications, courses, or programs? एडवाइस की भी बात करते हैं तो मैं पेरेंट्स और बच्चों से सब केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि पहले आपको ये समझना होगा कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में। यदि आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो नो डाउट ये फील्ड के अंदर आपको कभी भी जॉब की कमी नहीं होगी। बट आप किसी भी फील्ड में हो, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आप हो और आप स्किल्ड हो, आपकी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज है, तो आपके पास जॉब की कमी नहीं है। At last, I would like to ask you, what is the future of BCA or MCA in coming next 5 years? BCA MCA मतलब जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड है, इसके अंदर बच्चों का जो फ्यूचर आगे चल के हम देख पाते हैं वो नो डाउट कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जॉब की कभी कमी नहीं होगी। हम ये बोल जरूर रहे हैं कि अब AI आएगा, बहुत सारे जॉब कोलैप्स हो जाएंगी, पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि AI से जॉब कोलैप्स होंगे तो कुछ नए जॉब क्रिएट भी होंगे। तो ये एक ऐसी फील्ड है, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो यदि आप देखोगे तो हर चीज़ कंप्यूटराइज है ना। हम अपने घर से लेकर के, आप जब कॉलेज आओगे तो आपको रास्ते से अपने घर से लेके कॉलेज के बीच का जो आप वे देख रहे हो उसमें भी बहुत सारी कंप्यूटर साइंस की ही चीज़ें मिलेंगी। तो अब इस प्रेजेंट सिनारियो के अंदर कंप्यूटर साइंस हर जगह, तो नो डाउट आने वाले समय के अंदर जॉब्स कमी नहीं होगी। बट कमी कहाँ होगी? बच्चों को सीखना होगा। लर्न के साथ अनलर्न भी बहुत ज़रूरी है और रीलर्न भी बहुत ज़रूरी है। तो यदि ये 3 चीज़ें हमने ले ली कि लर्न क्या है, रीलर्न क्या है और अनलर्न क्या है, तो हमारा बच्चा जो है वो नो डाउट उसके लिए 5 साल क्या 10 साल बाद भी इस फील्ड के अंदर जॉब की कमी नहीं होगी। Thanks a lot, ma'am. It was such an informative session talking to you. Thank you so much, Lakshika, for providing me such a valuable platform here. Thank you.